हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट कम्युनिटी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हमने इसके पहले प्लांट कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और आज हम प्लांट कम्युनिटी के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फील्ड है कम्युनिटी इकोलॉजी का, जिसे हम सीन इकोलॉजी भी कहते हैं, इस फील्ड में हम कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और ये फील्ड कहलाता है फाइटोसोशियोलॉजी। जब हम कम्युनिटी के एनालिसिस करते हैं, कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं नेचर में जाके, तो उसे हम फाइटोसोशियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स कहते हैं या फाइटोसोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी कहते हैं। किसी भी प्लांट कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उस कम्युनिटी में कई एस्पेक्ट्स या पैरामीटर्स की स्टडी करनी होती है और ये जो भी पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर्स हमें नेचर में जाके देखने पड़ते हैं और उसके आधार पे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो दिस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ has largely been developed in Europe, and the scientists responsible for this type of phytosociological studies were J. Braun Blanket. He outlined several characters and studied the phytosociology of community. He characterized, Braun Blanket, two types of पैरामीटर्स और कैरेक्टर्स टू स्टडी कम्युनिटी, एंड दीज कैरेक्टर्स या जो भी ये पैरामीटर्स हैं कम्युनिटी को पढ़ने के, वो दो तरीके के पैरामीटर्स हो सकते हैं। वन इज़ एनालिटिकल कैरेक्टर एंड द अदर वन इज़ सिंथेटिक कैरेक्टर्स। एनालिटिकल कैरेक्टर्स are the characters which are based on simple analysis of the community. Means something is measured or something is observed, then they become analysis. This becomes analysis part of the community, and the characters are analytical characters. If we compute some other characters on the basis of the primary data we have received from the phytosociological observations, then these characters are known as synthetic characters, or the characters which are synthesized or computed on the basis of the primary characters. So according to Braun Blanket, analytical characteristics are those features of the community which can be observed or measured directly in each part of the community. These analytical characters may be of two types. One is qualitative character and the other one is quantitative characters. As the name indicates, qualitative characters are the characters which are described about the community. Means some parameters which can be described with reference to community, means how the community is looking, how the community is structured. Only observations, no measurements, only observations, and these characters are derived and they are known as qualitative characters. There is no measurement in this type of characters. Second type of characters are quantitative characters. Quantitative characters means the characters which can be measured more readily than the other characters. Means if we are saying the community is forest community, just we say that plants are tall, but if we measure the height of plants, then it becomes a quantitative characters, and by simply saying that big trees are there, then it is a qualitative character. So if in analytical characters, the characters which are described are qualitative characters and the characters which are measured are quantitative characters. Now first we will take qualitative characters.
क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स विच आर डिस्क्राइब्ड कैरेक्टर्स. केवल इनका शब्दों में ही हम इनको वर्णन कर सकते हैं और इनको हम मेजर नहीं कर सकते. तो कई सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में, जैसे फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी, लाइफ फॉर्म्स, सोशेबिलिटी, वाइटैलिटी, अबंडेंस. वी विल टेक वन बाय वन these characters in qualitative characters heading. First we will take physiognomy. First character in qualitative character is physiognomy. Physiognomy means क्या होता है physiognomy? Physiognomy का मतलब होता है कि external appearance of the community. जो भी community है उसको हम external appearance के basis पे पढ़ते हैं. General appearance of the vegetation as determined by the growth form of the dominant species. Such a characteristic appearance, it can be expressed by a single term. For example, a simple look at the community with large number of big trees with some shrubs would we will instantly make believe that it is a forest. Just I have pointed out earlier. Similarly, if we have a look on the community and we find some shrubby or thorny plants there, we will say it is a desert or a grassland or a mountain vegetation or a certain obvious these vegetations, these communities, they have certain obvious and visible characteristics. So सिंपल एक देखने से जो भी उसको हम मतलब जैसे झाड़ियाँ हैं या बड़े पेड़ हैं या छोटे पेड़ हैं या किस तरीके के एक्वेटिक कम्युनिटी है, तो हम ये अपीयरेंस के आधार पे हम प्लांट कम्युनिटी के जो भी उसका स्वरूप होता है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये कम्युनिटी, क्योंकि हमारे माइंड में ये सेट है कि अगर बड़े वाले प्लांट हैं तो वो एक फॉरेस्ट होगा, छोटे प्लांट कांटे वाले प्लांट दिख रहे हैं तो वो एक डेजर्ट होगा. तो इसे हम फिजियोग्नोमी कहते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कम्युनिटी का हो जाता है. दूसरा कैरेक्टर कहलाता है स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण होता है. इसका मतलब ये है कि एक ये स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा वे ऑफ डिस्क्राइबिंग कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग स्पीशीज़ के जो प्लांट्स हैं वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके रेफरेंस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कम्युनिटी में. जैसे एक डेंस फॉरेस्ट है तो उसमें हम ये देखते हैं कि डेंस फॉरेस्ट में हमें वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन नज़र आता है और ये वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन हम ये देखते हैं कि लाइट के रेफरेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. और किसी घने वन में जैसे तो वहाँ पे कई सारे लेयर्स पाई जाती हैं प्लांट्स की. जैसे सबसे ऊपर की तरफ ट्रीज़ होंगे, उसके नीचे श्रब्स होंगी, फिर हर्ब्स लेयर होंगी, सबसे नीचे ज़मीन पे हमें मॉसेस या शैवाल, ये लाइकेंस हैं, एल्गी हैं, ये दिखाई देती हैं. तो ये एक जिन प्लांट्स को लाइट की कम रिक्वायरमेंट है वो नीचे की तरफ पाए जाएंगे और जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, ऊंचाई पे पाए जाते हैं. तो ये जो भी स्ट्रैटिफिकेशन है, ये जो भी प्लांट का स्ट्रेटा में अरेंज होना है, ये एक तरीके से कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है कम्युनिटी का, उसमें कितने स्ट्रेटा पाए जाते हैं. लाइट के रेफरेंस में है तो हम इसे वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, और अगर टेम्परेचर के रेफरेंस में होता है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के प्लांट मिलते हैं. इफ़ वी ऑब्जर्व द फ्लोरा ऑफ द कम्युनिटी फॉर द होल ईयर, दैट चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन it may be apparent with the change in the season, and this is known as aspection of the community. तो stratification और aspection दोनों ही important होते हैं कम्युनिटी के रेफरेंस में.
तो ये हमें जैसे अभी बताया फॉरेस्ट में भी लेयर्स मिलती हैं। ग्राउंड सबस्ट्रेटम है जिसमें मॉसेस लाइकेन होंगी, फिर ऊपर उसके हर्ब्स लेयर होगी, फिर मिडिल लेयर श्रबी लेयर होगी या टॉप लेयर ट्रीज़ की होंगी, और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो ट्रीज़ का सहारा लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स देख रहे हैं हम, जिसमें फिजियोग्नोमी और स्ट्रेटिफिकेशन के को हमने अभी पढ़ा उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबंडेंस। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कम्युनिटी का। अबंडेंस का मतलब बहुलता या बाहुल्य, और ये अबंडेंस जो है वो वैसे तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के रूप में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि हम जब बहुलता देखते हैं तो हम नंबर की भी बहुलता देखेंगे, नंबर भी काउंट करने पड़ेंगे हमें। लेकिन यहाँ क्वालिटेटिव कैरेक्टर में हम जो प्लांट्स हैं उनकी एक तरीके से डेंसिटी देख लेते हैं कि कितने प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, कितने मतलब अलग अलग दूर दूर प्लांट नज़र आ रहे हैं या पास पास में दिख रहे हैं। तो ये हम इस तरीके से अबंडेंस को ज़रूरी नहीं है कि हम क्वांटिटेटिव रूप में या मेजरमेंट रूप में करें, और जितने भी नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं उसको हम कैटेगरी मतलब उनको हम कम्युनिटी के कैरेक्टर के रूप में भी डिपिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जैसे किसी भी जगह पे जो पौधे हैं वो एक जैसे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते, बल्कि कई जगह हमने देखा कि छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनमें उनका नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग पौधों की संख्या भी पाई जा सकती है, और पौधों की संख्या के हिसाब से उनको ज़रूरी नहीं है कि हम गिने, लेकिन उनको ऑब्ज़र्व करके भी हम इसको अबंडेंस को एक 5 पॉइंट स्केल पे ले लेते हैं। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो हम कुछ पॉइंट स्केल पे उनको डिनोट करते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं केवल। तो वो एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी होती है कि आप जैसे 5 पॉइंट स्केल पे 1 2 3 4 5 आप ग्रेडिंग कर सकते हैं उसकी, उस कैरेक्टर की। जैसे हम बहुलता है तो ये अबंडेंस है, इसको हम ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? जो प्लांट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो या तो हम कह सकते हैं कि वेरी रेयर नंबर ऑफ़ प्लांट्स, बहुत ही कम दिख रहे हैं, या कम दिख रहे हैं मतलब रेयर हैं। सामान्यतया दिख रहे हैं मतलब कि कॉमन है। फ्रीक्वेंट दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्लांट्स हैं जिनकी आवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहे हैं, हमें बहुत सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो मच फ्रीक्वेंट है। तो दीज आर 5 ग्रेड्स ऑफ द अबंडेंस: वेरी रेयर, रेयर, कॉमन, फ्रीक्वेंट एंड वेरी मच फ्रीक्वेंट। जो इनके इंग्लिश मीनिंग हैं आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबंडेंस किस तरीके से वेरी कर रही है, राइट। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर और क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज़ सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी या सामाजिकता। जैसे इंसान एक सामाजिक प्राणी है, प्लांट्स में भी सामाजिकता या सोशिएबिलिटी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि आपस में जैसे उनके क्या रिलेशनशिप हैं प्लांट्स के, वो उनकी सोशिएबिलिटी डिसाइड करती है। प्लांट्स जो हैं कम्युनिटी में वो छोटे बड़े समूहों में रहते हैं। कुछ जो स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं वो पास पास में उग के और बहुत ही थिक पॉपुलेशन बना लेते हैं अपनी, या कुछ पौधे आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हैं और वो ज़्यादा पास पास नहीं ग्रो कर पाते, तो या तो वो फिर नष्ट हो जाते हैं या उनमें कंपटीशन चलता रहता है। तो ब्राउन ब्लैंकेट ने सोशिएबिलिटी की भी कुछ ग्रेड्स तय की हैं। सोशिएबिलिटी की प्रॉक्सिमिटी, दिस इज सोशिएबिलिटी इज़ प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लांट टू वन अनदर और द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्पीशीज़। उनका आपस में किस तरीके से एक सामाजिक ढांचा है उसके हिसाब से हम उनको कर सकते हैं, इस तरीके से ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें S1 से लेके S5 की ग्रेडिंग हमने की है। यहाँ पे S1 वाले जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर ग्रो करेंगे, एक दूसरे से अलग ग्रो करेंगे, अकेले अकेले ग्रो करेंगे, तो वो सबसे कम सोशेबिलिटी वाले प्लांट होंगे या S1 कैटेगरी के प्लांट होंगे। S2 कैटेगरी के प्लांट्स हैं
दे आर ग्रुप्स ऑफ 4 to 6 प्लांट्स एट वन प्लेस। कुछ प्लांट्स का ग्रुप जो है वो किसी जगह पे दिखाई देता है। फिर उससे ज़्यादा सोशेबिलिटी क्या होगी S3 में? S3 में होंगी कि छोटे छोटे चप्पों या रीजन्स में प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मैनी स्मॉल स्कैटर्ड ग्रुप्स। S4 इज़ बड़े बड़े ग्रुप्स में हमें प्लांट्स नज़र आएंगे, बिगर ग्रुप्स ऑफ मैनी प्लांट्स, मतलब बहुत सारे पौधों के बड़े बड़े समूह नज़र आएंगे। और S5 जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कम्युनिटी में सोशेबिलिटी नज़र आ रही है, हाईएस्ट लेवल की सोशेबिलिटी है, मतलब बहुत बड़े रीजन में एक ही तरीके के बहुत सारे पौधे फैले हुए हैं, लार्ज ग्रुप ऑक्यूपाइंग अ बिगर एरिया, देन इट इज़ S5 category of plant, right? Then this is the sociability of the plant. Now next come the vitality of the community. Vitality is the we can say जीवन जीने की जो शक्ति है वो वाइटलिटी कहलाती है। वाइटलिटी का मतलब है कि जो प्लांट की जनरल ग्रोथ है या जो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसको हम एक तरीके से प्लांट की वाइटलिटी या विगर कह सकते हैं। ये है कि जनरल कंडीशन कैसी है प्लांट की, और वो अपनी लाइफ साइकिल को एग्जिस्टिंग जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें कैसे पूरी करता है। और इसी से रिलेटेड एक और शब्द है विगर। विगर इज़ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द प्लांट एट डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें प्लांट की हेल्थ कैसी रहती है। तो वाइटलिटी जो है वो कई बातों पे डिपेंड करती है। स्पीशीज़ जो है वो कितनी हेल्दी है स्पीशीज़, उस बात पे कम्युनिटी के प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उस पे कम्युनिटी की वाइटलिटी डिपेंड करती है। तो प्लांट में क्या होता है, जो कम्युनिटी के प्लांट्स हैं उनमें जो स्टेम की हाइट है वो कैसी है, जो रूट की लेंथ है वो कैसी है, लीफ का नंबर कितना है, नंबर ऑफ लीव्स, एंड देन जो फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स हैं उनका नंबर और उनका वेट कितना है, ये सारी चीज़ें वाइटलिटी को डिसाइड करते हैं। इट इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ द प्लांट एंड इट्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ प्लांट। इट डिपेंड्स ऑन स्टेम हाइट, लीफ एरिया, leaf number, weight of flower, fruits and seeds. So on the basis of these characters, Braun Blanket in 1932 he categorized the plants in this 5-point scale, and vitality may be grouped as from V1 to V5. V1 means very little vital, or the plants having least vitality, and V5 has the plant having highest vitality value. Means how can we categorize these groups V1 to V5? If plants whose seedling die, मतलब पौधे जो हैं वो अंकुरण होता है और उसके बाद मर जाते हैं, तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की वाइटलिटी है जिसको हम V1 कहते हैं। इन V2 कैटेगरी सीडलिंग ग्रोज बट अनेबल टू रिप्रोड्यूस। पौधा होता है, उसका पौधे का जो छोटा नवोद्भिद है वो अपनी ग्रोथ करता है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता। V3 कैटेगरी इससे थोड़ी हायर कैटेगरी है जिसमें सीडलिंग चलता है, ग्रो करता है प्लांट्स, रिप्रोडक्शन भी होता है लेकिन केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। V4 में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स में लेकिन बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है। और V5 मीन्स हाईएस्ट वाइटलिटी के प्लांट्स होंगे, उनमें द प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड ग्रो रेगुलरली। जो V है उसका मतलब यहाँ पे वाइटलिटी है, और जो प्लांट्स हैं ये वाइटलिटी 5 कैटेगरी में ये मैक्सिमम अपनी ग्रोथ शो करते हैं।
So this is about these qualitative characters. Means we have studied physiognomy, stratification, vitality, sociability, and abundance. We will continue it in our next lecture. Thank you very much.